Good morning, student. This is the class 9 subject social science, and this is the chapter 3rd of geography, and the topic name is drainage, and this is the lecture 6th. This is the summary lecture. And student, in this lecture we will discuss about all major points of this chapter, and in this chapter we have discussed about different types of river and different types of lakes. Some rivers are Himalaya rivers and some rivers are peninsular rivers, and some lakes are permanent lakes and some lakes are freshwater lakes, and importance of rivers and lakes in Indian economy. So student, let's start our lecture, and today we will discuss about meaning of drainage and the meaning of drainage basin. And student, then we will discuss about Himalaya river, peninsular river. In India there are two river system, Himalaya rivers and peninsular river. Himalaya rivers originate from Himalaya, and Himalaya rivers are perennial, and the peninsular rivers are seasonal rivers, and they originate from, most of the river originate from Western Ghat, and Himalaya rivers are Indus rivers, Ganga river and Brahmaputra, and peninsular rivers are Narmada, Tapi, Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi. And lakes, then we will learn about lakes and importance of river and lakes in Indian economy. And last we solve some question. That question I have assigned in previous lecture. So student, let's start our lecture. And the student, drainage means the river system of an area is called drainage. Okay, and the drainage basin means the area drained by a single river system. A single river system means a river along with its tributaries is called drainage basin. Okay, means the area drained by a single river system is called drainage basin. And the student, water divide means any elevated area, any upland area such as mountain, such as hilly area and upland separate two drainage basin is called water divide. And student, Ambala is a district of Haryana state, and Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. Okay, and the Amazon river is the world largest drainage basin, and Ganga is the largest drainage basin in India. Okay, and next, firstly you see the map of India, and northern part are covered by Himalaya rivers, and the southern part, most of the southern part are covered by peninsular river. Okay, Himalaya rivers such as Indus river, Ganga river and Brahmaputra river. And Himalaya river originate from Himalaya, and they flow north to south and drain into Arabian Sea and Bay of Bengal. And Himalaya river come from mountains, and they formed gorge, and they carry large amount of sand and silt in their course to the sea. And the Indus river originate from China, Tibet, and then enter into Jammu Kashmir, that it enter into Pakistan and drain into Arabian Sea. And the Ganga river originate from Uttarakhand, from Gangotri glacier, and then enter to UP, Bihar, Jharkhand, West Bengal and drain into Bay of Bengal. And the Brahmaputra river originate from China, Tibet near Mansarovar Lake and flow eastward and drain into Bay of, and it enter to Arunachal Pradesh, that it enter to Assam and drain into Bay of Bengal. And here is peninsular river. Peninsular river, most of the peninsular river originate from Western Ghat. Here is Godavari river. Godavari river originate from Nasik district of Maharashtra, and the Krishna river originate from Mahabaleshwar from Maharashtra, and the Kaveri river originate from Karnataka and it enter to Bay of Bengal, and the Mahanadi originate from Chhattisgarh and it drain into Bay of Bengal.
Okay, these are Himalaya river and these are Peninsular river. And Himalaya river flow north to south and Peninsular rivers are flow east to west and west to east. And Himalaya rivers cover long distance from their mouth to sea, and the Peninsular rivers cover short distance comparatively. Himalaya river, okay, and the Himalaya river form gorge and meanders, and Himalaya rivers do not form meanders and oxbow lake. Okay, so let's start. Firstly, we will discuss about the Himalaya rivers. Himalayan river, these rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain. And these rivers are perennial and they flow throughout the year. These rivers have long courses from their sources to the sea. You know, student, Himalaya river receive water from rainfall and snow. Because Himadri part covered with snow, and the river receive water from melted snow and the water and the heavy rainfall. And these rivers are perennial, they flow throughout the year, and these river have long course, they cover long distance from their origin to the sources. स्टूडेंट, हिमालय जो रिवर्स हैं, आपको पता है कि हिमालय रिवर्स जो है मोस्टली माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, और वहाँ पे ओरिजिनेट होने की वजह से वहाँ जो हिमाद्री वाला पार्ट है वो मोस्टली आपका ग्लेशियर से कवर्ड रहता है, और जो लोफ्टी माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन जो हिमाद्री में है, वहाँ पे माउंटेन ज़्यादा होने की वजह से और वहाँ पे ग्लेशियर होने की वजह से जो पानी है वो हमेशा क्या है, रिवर्स में फ्लो रहता है। और जो हिमालय जो रिवर्स वो पेरिनियर, यानी हमेशा उनमें ग्लेशियर की वजह से पानी ज़्यादा रहता है और वो बहती रहती हैं। और हिमालय रिवर का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके ओरिजिन से लेके उसके सी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाता है हिमालय रिवर्स के द्वारा। एंड दीज रिवर्स आर एंगेज्ड इन हाई एरोजन एक्टिविटी। जब हिमालय रिवर अपर कोर्स से नीचे की तरफ आती है, डाउन कोर्स की तरफ आती है, तो बहुत सारे जो सैंड और सिल्ट भी क्या होती हैं, लेके आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो रॉक्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वो सेंडिमेंट्स रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि जो रॉक्स हैं उसके जो होते हैं छोटे टुकड़े हो जाते हैं। एंड दीज रिवर्स कैरी ह्यूज लॉड्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट। जो हिमालय रिवर हैं ये बहुत सारे, इसमें क्या है, अपने साथ बहुत सारा सैंड एंड सिल्ट भी अपने साथ फ्लो करके लेके आता है। दीज रिवर्स आर यूजफुल irrigation in the middle and lower courses river are meanders and oxbow lake. Meander means curve of the river and oxbow lakes means U-shaped valley, and it make separate water bodies is called oxbow lake. हिमालय से जब रिवर्स अपर कोर्स और डाउन कोर्स की तरफ आते हैं तो बहुत उसकी जो मूवमेंट होती है, बिल्कुल उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कर्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेंडर्स बोलते हैं। और उस मेंडर्स में से जब क्या है, कुछ पार्ट उस मेंडर्स मेन स्ट्रीम में से अलग हो जाता है, उस पार्ट्स को बोला जाता है ओक्सबो लेक कहा जाता है। और हिमालय रिवर अपने साथ बहुत सारा सैंड एंड सिल्ट भी क्या करता है, फ्लो लेके आता है। तो दीज आर द फीचर ऑफ हिमालय रिवर, एंड द इंडस एंड गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द मेन रिवर ऑफ हिमालय रिवर। हिमालय रिवर की जो मेन रिवर है इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, एंड द टू मेजर हिमालय रिवर द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। बिल्कुल माउंटेन रेंजेस है, आपको पता 3 रेंजेस है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो जो आपकी तिब्बत और जो आपकी इंडस और गंगा जो रिवर्स हैं, यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र है, बिल्कुल ये माउंटेन के नॉर्थ वाले पार्ट से बिल्कुल ओरिजिनेट होती हैं। तो दीज आर द फीचर ऑफ हिमालय रिवर। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द इंडस रिवर। स्टूडेंट, इंडस रिवर, हियर इज इंडस रिवर, दिस इज इंडस रिवर, okay, and Indus river originate from near China, Tibet, near Mansarovar lake. Here is Mansarovar lake, and it flow west side and it enter into Jammu Kashmir, and its tributaries are Jaskar, Nubra, Jyok, and then Indus river enter into Pakistan, and here is tributaries are Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj. That here is Pathankot, and Indus river enter in Arabian Sea east of
कराची। ओके, तो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर एंड 20% वाटर ऑफ इंडस रिवर आर यूज्ड बाय ओनली इंडिया एंड सम इंडियन स्टेट यूज्ड इंडस वाटर सच एज पंजाब राजस्थान। ओके, इंडस रिवर एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। स्टूडेंट्स, इंडस रिवर है जो चाइना तिब्बत से के मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये वेस्ट साइड में फ़्लो करती है। फ़्लो करने के बाद जो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे लोकल जो रिवर्स है उसमें से क्या मर्ज हो जाती हैं और यहाँ क्या है अटक एक पाकिस्तान में एक सिटी का नाम है, वहाँ से फिर जो इंडस रिवर है वहाँ से माउंटेन से क्या है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में क्या करती है एंटर करती है। और ये वाला जो एरिया है वो पंजाब प्लेन वाला एरिया है, यानी पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया है, इस वाले एरिया को कहा जाता है। और इस एरिया में जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो झेलम है, चेनाब है, रावी, सतलुज है, वो इंडस में क्या होती है मर्ज हो जाती है। और जहाँ मर्ज होती है वो पाकिस्तान का पार्ट है पठानकोट के पार्ट में ही क्या इंडस रिवर इन सब में मर्ज होती है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो कराची है उसके ईस्ट से, यहाँ कराची और इसके ईस्ट साइड से होती हुई इंडस फ्लो करती हुई अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है। तो दीज पार्ट आर कवर्ड बाय इंडस रिवर। And the Indus River, it rises near Lake Mansarovar in Tibet and enter India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. And its total length is 2900 kilometer. In India is the longest river in the world. Okay, Indus River rises near Mansarovar Lake in Tibet and enter into Ladakh district of Jammu Kashmir and length is 2900 kilometer. And tributaries are the Jaskar, the Nubra, Shyok and the Hunja join in the Kashmir region. जम्मू कश्मीर में एंटर करते तो वहाँ की जो लोकल रिवर है वो उसके साथ मर्ज हो जाती हैं। एंड द इंडस फ्लो थ्रू बलिस्तान एंड गिलगिट एंड अमर्ज फ्रॉम द माउंटेन अटक। और उसके बाद क्या है इंडस रिवर जम्मू कश्मीर से बाहर की साइड जाती है, पाकिस्तान के साइड बलिस्तान और गिलगिट के साइड से एंटर करती हुई ये क्या होता है माउंटेन, फ्रॉम द माउंटेन से क्या करती है, माउंटेन में से निकलती हुई क्या करती है अटक में फ्लो करती है। अटक ये क्या है पाकिस्तान में सिटी का नाम है अटक, और वहाँ से प्लेन एरिया में मर्ज हो जाती है। एंड द सतलुज, ब्यास, रावी एंड चेनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। उसके बाद जो इंडस रिवर जम्मू कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में एंटर करती है तो वहाँ पे जो रिवर्स हैं वहाँ पे उसके साथ मर्ज होती हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम मिक्स हो जाती हैं। और मिठानकोट वाले के पास में जो पाकिस्तान है मिठानकोट के पास है वहाँ पे ये इंडस रिवर इन सभी रिवर्स में मर्ज होने के बाद जो अरेबियन जो इंडस रिवर है वो फ्लो साउथवर्ड रीचिंग द अरेबियन सी एंड ईस्ट ऑफ कराची। उसके बाद इंडस रिवर साउथवर्ड यानी कि अरेबियन सी बी की तरफ मूव करती है और ईस्ट कराची के ईस्ट साइड से मूव करती हुई इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडस रिवर एंड नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द गंगा रिवर। एंड यू नो गंगा इज द longest river in India and Ganga river originate from Gangotri glacier from Uttarakhand and it enter to Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal and drain into Bay of Bengal. Student, Ganga total length is 2500 kilometer and its tributaries are Yamuna and Yamuna river originate from Yamunotri glacier from Uttarakhand. Okay, and the Ganga and Yamuna flow parallel to each other and they meet each other in Allahabad. Okay, here is Allahabad, here Ganga and Yamuna meet Allahabad. Okay, and the Ganga tributaries are Yamuna, Ghagar, Gomti and Gandak and Kosi. And the Ghagar, Gandak, Kosi originate from Nepal हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद जो यहाँ से भी पेनिनसुला प्लेटू ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड से भी जो रिवर्स है वो निकलती हैं, जैसे कि चंबल है मध्य प्रदेश के में ही सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ से भी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं चंबल, बेतवा, सोन। और ये रिवर भी फिर क्या है, ये रिवर भी वेस्ट साइड से ईस्ट साइड के फ्लो करती हैं और फिर गंगा, ये रिवर छोटी होती हैं और ये गंगा रिवर्स में क्या होती है मर्ज हो जाती है। और ये गंगा रिवर मर्ज होने के बाद जो गंगा रिवर है वो फिर गंगा जो रिवर ये फरक्का यानी वेस्ट बंगाल के फरक्का तक क्या करती है
फरक्का तक ये फ्लो करती है। उसके बाद यहाँ पे आके जो गंगा रिवर है उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। 2 पार्ट्स कैसे, इसमें ये एक जो फरक्का है, यहाँ हुगली रिवर है, वो तो वेस्ट बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है, हुगली रिवर है, ये हुगली रिवर है। और ये फिर क्या है, यहाँ पे हुगली रिवर बन के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज हो जाती है। और इसकी जो मेन जो है, इसकी मेन स्ट्रीम है भागीरथी, इसकी मेन स्ट्रीम भागीरथी, वो फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। और जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस पॉइंट पे आपस में मर्ज होते हैं उसको बोलते हैं मेघना। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। हियर इज सुंदरबन डेल्टा, एंड सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड. So these are the locations of Ganga river, and Ganga river is the longest river in India, and the headwater of the Ganga called भागीरथी. गंगा की जो मेन जो स्ट्रीम है उसको कहा जाता है भागीरथी, एंड इज फेड बाय द अलकनंदा एंड देवप्रयाग इन उत्तराखंड. ये कहाँ से निकलती है, अलकनंदा एट देवप्रयाग उत्तराखंड. उत्तराखंड के अलकनंदा से ये क्या करती है, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, एंड एट हरिद्वार द गंगा अमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स. और हरिद्वार वो प्लेस है जहाँ पे गंगा रिवर माउंटेन से प्लेन एरिया में एंटर करती है, उस सिटी का नाम है हरिद्वार. एंड द गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी रिवर ट्यूबेड फ्रॉम द हिमालय, एंड सम रिवर्स आर जैसे यमुना, घाघर, गंडक एंड कोसी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. एंड द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमोंत्री ग्लेशियर इन द हिमालय. हिमालय के में से जो ग्लेशियर है यमोंत्री, उसमें से राइजेज होती है. और ये गंगा और यमुना क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती हैं. इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड राइट बैंक ट्यूबिट्स मीट्स विद द गंगा. और ये इसकी जो राइट बैंक की तरफ से ये क्या करती है, गंगा में मर्ज होती हैं. और जिस पॉइंट्स पे मर्ज होती है वहाँ पे सिटी है इलाहाबाद. इलाहाबाद में गंगा और यमुना क्या होती हैं, मर्ज हो जाती हैं. And the Ghaggar, Gandak and the Kosi rises the Nepal Himalaya, and the main distributary which come from Peninsula. Peninsula आपको बताया कि सेंट्रल हाईलैंड से भी कुछ रिवर्स क्या करती हैं, वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं. चंबल, बेतवा सोन है, जो सोन है ये क्या है, इन ये रिवर्स हैं. दीज रिवर्स आर शॉर्टर देन गंगा रिवर, and these river from semi-arid area have shorter courses and do not carry much water in them. ये रिवर छोटी होती हैं, इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता, और ये सारी बाद में रिवर गंगा में क्या होती है, मर्ज हो जाती हैं. उसके बाद है द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल. गंगा है जो गंगा का ईस्टवर्ड जो पॉइंट है, यानी कि ईस्ट साइड में जो उसका लास्ट पॉइंट है वो है फरक्का. फरक्का है जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ तक फ्लो करता है. और यहीं से जो गंगा जो के डेल्टे बनते हैं उसका नर्दर्न पॉइंट है, यानी कि फरक्का के नर्दर्न पॉइंट जो है फरक्का में है. और गंगा जो डेल्टा वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो ड्रेन होती हैं, तो ड्रेन होने से पहले जो है डेल्टा बना. डेल्टा क्या है, ट्रायंगल शेप ऑफ ए रिवर, ट्रायंगल शेप ऑफ माउथ ऑफ ए रिवर. एंड द भागीरथी हुगली फ्लो साउथवर्ड. उसके बाद जो भागीरथी है, हुगली तो आपकी वेस्ट बंगाल में चली जाती है. उसके बाद जो भागीरथी है वो कहाँ जाती है, साउथ की साइड जाती है, एंड ड्रॉ द डेट्रिक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल. और साउथ वर्ड की साइड एंटर करके क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है. ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ गंगा रिवर, एंड टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 2500 किलोमीटर, एंड गंगा रिवर इज द longest river in India. Next we will learn about the Brahmaputra river, and Brahmaputra river also originates from China, Tibet near Mansarovar Lake. Here is Mansarovar Lake, but it enter into east side and it flow parallel to the mountain, and it enter in India from mountain peak Namcha Barwa. Here is Namcha Barwa, and length is 7,757 kilometer. And here is Brahmaputra take U-turns from Arunachal Pradesh, and it is called Dibang, and some tributaries are Lohit, and Brahmaputra enter into Assam. It is called Dibang, Dihant, and then Brahmaputra and rivers enter into Bangladesh, and in Bangladesh Brahmaputra river called Jamuna, and Ganga and Brahmaputra meet it Meghna point, and its point is called Meghna, and Ganga and Brahmaputra formed Sundarban Delta, and the Ganga and Brahmaputra river drain into Bay of Bengal, and total length of is 3080 kilometer, and the Brahmaputra is the longest river in India, but it
फ्लो मोस्टली आउटसाइड ऑफ द इंडिया। ब्रह्मपुत्र रिवर है जो क्या है इंडस रिवर से थोड़ी सी क्या है इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका मोस्टली जो पार्ट है ना वो इंडिया के बाहर ही फ्लो करता है। और यहाँ पे ये क्या है नामचा बरवा या माउंटेन पीक है, यहाँ से यू टर्न लेती है। और यहाँ जो तिब्बत है ये जो वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और यहाँ पे क्या होती हैं रिवर्स में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। लेकिन जब ये एंटर करती है इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में असम वाले पार्ट में एंटर करती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है बारिश होती है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर्स में क्या आता है पानी आ जाता है। पानी आने की वजह से और यहाँ पे सैंड और सिल्ट इकट्ठे होने की वजह से हर साल बहुत ज़्यादा क्या होता है कई बार नुकसान भी होते हैं, क्योंकि ये ओवर फ्लडिंग होने की वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी और ह्यूमन बींग्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इंडस रिवर। एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स it rises in Tibet east of Mansarovar Lake very close to the sources of Indus Satluj। जहाँ से इंडस और सतलुज रिवर्स राइजेज होती हैं वहीं से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर भी क्या होती हैं राइजेज होती हैं। एंड इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस रिवर से लेंथ में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इसका मोस्टली जो पार्ट है वो आउटसाइड इंडिया क्या करता है फ्लो करता है। एंड इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ये मोस्टली है ये ईस्टवर्ड में फ्लो करती है और ये बिल्कुल माउंटेन के पैरेलल में फ्लो करती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न और द रीचिंग ऑफ mountain peak Namcha Barwa and its length is 7,757 meter and it takes U-turn and enter India in Arunachal Pradesh through a gorge। gorge का मीन्स क्या है जब रिवर्स क्या करती है रिवर्स जब माउंटेन्स को क्रॉस करती हुई जब अपर कोर्स से डाउन कोर्स की तरफ आती है उसको बोलते हैं गॉर्ज बोलते हैं। तो यह ऐसे जो है रिवर्स क्या ब्रह्मपुत्र रिवर है जो इंडिया में क्या करती है एंटर करती है। एंड इट इज़ कॉल्ड दिहांग। इट इज़ इन ज्वाइंड बाय दिबंग and the Lohit and many other tributaries to form ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे तिब्बत में इसको संगपो बोलते हैं और जब ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते इसको बोलते हैं दिहांग। और वहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित और बहुत सारी जो ट्रिब्यूट्स मिलके क्या करती है ब्रह्मपुत्र को में मर्ज हो जाती हैं। एंड ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। एंड द लेंथ ऑफ द रिवर इज 3080 किलोमीटर। सो स्टूडेंट दीज आर द फीचर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द Ganga Brahmaputra basin is the largest basin and Ganga Brahmaputra river formed Sundarban Delta and the Sundarban Delta is famous for Royal Bengal tiger and it is the largest and fast growing delta in the world. Okay students, so these are the features of Himalaya river, Indus river, Ganga river and Brahmaputra river. And these are Himalaya river and the Ganga river is the largest river in India. And next, the Peninsular River. Peninsular River, these rivers originate in the Peninsula Plateau and most of the rivers originate from Western Ghat of slope of the Western Ghat and Peninsular rivers are seasonal and depends on rainfall. And these rivers are shorter and shallower courses as compared to the Himalaya river. बेटा पेनिनसुलर जो रिवर है उनके जो साइज़ है वो छोटा होता है and the Peninsular river flow east to west and west to east एंड दीज रिवर आर शॉर्टर, इनकी लेंथ भी कम होती है। जो हिमालय रिवर्स को तो क्या है काफ़ी डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता है, लेकिन ये जो है रिवर्स हैं छोटी होती हैं। और दीज रिवर आर सीजनल, क्योंकि वहाँ सीजनल और क्या है ज़्यादा गर्मी होने की वजह टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये रिवर्स में कई बार पानी क्या होता है ख़त्म भी हो जाता है। और जिसकी वजह से जो ये रिवर्स हैं वो सीजनल होती हैं कि रेनफॉल होगा तभी इन रिवर्स में क्या रहता है पानी रहता है। एंड दे डू नॉट फॉर्म बेंडर्स, ये कोई बेंडर्स नहीं बनाते क्योंकि ये क्या है एक तो ये बिल्कुल ये फ्लैट एरिया में क्या करती फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, तो ये कोई बेंडर्स नहीं बनाती, कोई ऑक्सबो लेक नहीं बनाती। एंड सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड वेस्ट। इसमें कुछ जो रिवर है सेंट्रल हाईलैंड्स में
ओरिजिनेट होती हैं और टूवर्ड्स वेस्ट और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। मोस्टली जो टू रिवर्स हैं वो है नर्मदा एंड तापी, जो सेंट्रल हाईलैंड मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट साइड फ्लो होती हुई अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं। एंड दीज रिवर कैन नॉट कैरी सैंड एंड सिल्ट। जब इन रिवर्स का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है और प्लेन एरिया में ये फ्लो करती हैं तो ये अपने साथ सैंड और सिल्ट भी फ्लो नहीं करके लेके आती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी आर मेजर रिवर ऑफ peninsular river. These are central highland and these part are called peninsula plateau, and peninsula plateau are divided into two parts, central highland and Deccan plateau. And most of the rivers originate from western Ghats, slope of western Ghats such as Godavari, Krishna and Kaveri and Mahanadi. And here is central highland. In the central highland, two rivers originate from Madhya Pradesh, and Narmada river originate from Vidya range, and between Vidya range and Satpura range. And Narmada and Tapi rivers are flow parallel to each other and they drain into Arabian Sea. And firstly we will learn about Narmada river. And the Narmada rises in the Amarkantak hills in the Madhya Pradesh. Narmada river originates from Madhya Pradesh and it is also called heart of the Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स है जहाँ से नर्मदा रिवर राइजेज होती है एंड इट फ्लो टूवर्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फ्रॉम ड्यू टू फॉल्टिंग। नर्मदा रिवर फ्लो टूवर्ड द वेस्ट, ये वेस्ट के साइड फ्लो करती हैं क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली कैसे, आपको पता है कि जो हमारे अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं और जब प्लेट्स में क्या होती हैं एक दूसरे से बिल्कुल दूर जाती है, यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट है। जब प्लेट्स मूव फ्रॉम ईच अदर, एक से दूसरी से बिल्कुल क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो दो प्लेट्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है जिसकी वहाँ से डीप वैली बन जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली जो है वो है नर्मदा एंड तापी रिवर है, जो क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो वैलीज बनी हैं उनमें जो रिवर्स हैं वो है नर्मदा एंड तापी। ये दोनों रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, वेस्ट के साइड फ्लो करके अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती हैं। एंड द लेंथ ऑफ द रिवर इज 1312 किलोमीटर। एंड द नर्मदा रिवर cover parts of Madhya Pradesh and Gujarat and drain into Arabian Sea. So these are the features of Narmada river. And the Tapi basin, Tapi rises in the Satpura range in the Betul district of Madhya Pradesh. Tapi also originates from Madhya Pradesh, but it rises in the Satpura ranges. It also flow in a rift valley and parallel to the Narmada, but it is much shorter in length and its length is 7,2400 kilometer. And Tapi river cover parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra and drain into Arabian Sea. And the Tapi river and Narmada river made estuaries, and estuary is the wider part of a river to enter in the मेन ओशियन में इन अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी में एंटर करने से पहले जब रिवर्स का जो फेस है, जो उसका माउथ है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एस्टूरीज। तो दीज आर द फीचर ऑफ तापी रिवर एंड द नर्मदा रिवर। ओके, देखिए यहाँ नर्मदा रिवर ओरिजिनल फ्रॉम मध्य प्रदेश, ओके, एंड नर्मदा एंड तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश। Narmada river originates from Amarkantak hills and Tapi river originates from Satpura ranges, and they flow west side and they drain into Arabian Sea. And next we will learn about the Godavari river. Godavari river originates from Nasik district of Maharashtra, and the Godavari river is called Dakshin Ganga because of its length and area covered by Godavari. And Godavari rivers cover most of the 50% of Maharashtra and Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Odisha, and then Godavari drain into Bay of Bengal. And the Godavari is called, it is the largest peninsular river. Second, it rises from the slope of Western Ghats in Nasik district of Maharashtra.
Godavari is called largest peninsular river and its length is about 1500 kilometer. It drain into Bay of Bengal and the basin cover parts of Maharashtra 50% एंड मध्य प्रदेश उड़ीसा. ये गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है, आपको पहले ही बताया था मैंने, क्योंकि जो है नॉर्दर्न प्लेन एरिया गंगा प्लेन के द्वारा कवर किया जाता है, तो जो सदर्न प्लेट है वो है गोदावरी रिवर के द्वारा कवर किया जाता है. इसलिए जो दक्षिण, जो साउथ को हम हिंदी में दक्षिण कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया दक्षिण गंगा, यानी दक्षिण में साइड में जो गंगा का रूप है वो है गोदावरी रिवर. तो एंड इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर. देखिए गोदावरी रिवर originated from Western Ghat and it cover parts of Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha and Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Andhra Pradesh and drain into Bay of Bengal and formed delta. और ये वाला जो एरिया जहाँ ये डेल्टा बनाती हैं वो रिवर, वो जो एरिया बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है. गोदावरी रिवर को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद है ये हमारी कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर एंड इट कवर पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, Andhra Pradesh and Maharashtra and they drain into Bay of Bengal. Okay, and the Krishna river rising from a spring near Mahabaleshwar and its length is about 1400 kilometer and it drain into Bay of Bengal and its tributaries are Koyna, Gatparba and Musi and the Bhima are the tributaries of Krishna river and its drainage basin is shared by means the Krishna river area covered by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh and the Krishna river form delta in the mouth of the river and drain into Bay of Bengal. Okay, here is Godavari. Godavari tributaries are such as Panganga, Vanganga and the Manjira and Godavari river merge with these tributaries and drain into Bay of Bengal and the Krishna river. Its tributaries are Bhima, originate from Maharashtra, Tugandhara, and Krishna river drain into Bay of Bengal. On the Krishna river, Naga Arjun Sagar Dam had built. और कृष्णा रिवर पे ही हमारा क्या है, ये जो है नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर पे. और उसके बाद हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर. कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ महाराष्ट्र. हियर इज वेस्टर्न घाट एंड ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट. कावेरी रिवर originate and Kaveri river, it cover parts of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and then it enter into Bay of Bengal. And the Kaveri river in the Brahmagiri range of the Western Ghat, it reaches the Bay of Bengal in south of Kudalur in Tamil Nadu. ये क्या करती है, ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होता है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है. बे ऑफ की जाती है ये पहले तमिलनाडु के कुडुलुरु यानी साउथ में जो कुडुलुरु है, तमिलनाडु के अंदर जो कुडुलुरु है वहाँ से एंटर करती है बे ऑफ बंगाल में, ड्रेनेज हो जाती है. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी. एंड इट बेसिन and the Kaveri river cover parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay, and here is Mahanadi, and Mahanadi originate from Chhattisgarh, and the Mahanadi area is 860 kilometer, and the Mahanadi cover parts of Mahanadi, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Madhya Pradesh and drain into Bay of Bengal and formed delta. Okay, student. So these are the peninsular rivers. Okay, and some dams are built on these rivers such as Bhakra Nangal Dam made on Satluj River and इट इज़ सिचुएटेड इन पंजाब. पंजाब में है जो बाखरा नंगल डैम बनाया गया है जो सतलुज रिवर पे है. उसके बाद यहाँ पे हम हैं, उसके बाद यहाँ पे है राणा प्रताप सागर डैम है जो कि आपका इधर राजस्थान में है.
हीराकुड डैम है जो चिल्का लेक पे है, जो आपका यहाँ पे उड़ीसा में है, हीराकुड डैम है। और उसके अलावा नागा अर्जुन सागर डैम है जो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बिल्कुल बॉर्डर पे वहाँ पे डैम बना हुआ है, नागा अर्जुन सागर डैम है। ओके एंड उसके बाद है कुछ लेक्स हैं। लेक्स देखिए बेटा, कुछ लेक्स आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ फ्रेश वाटर लेक होती हैं, कुछ सॉल्टी वाटर होती हैं, कुछ सीजनल होती है, परमानेंट होती हैं। तो वुलर लेक है जो हिमालय माउंटेन में जो भी लेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रेश वाटर लेक होती हैं, क्योंकि ग्लेशियर से जो लेक्स बनती है। तो यहाँ वुलर लेक है, डल लेक है, ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है जो हिमालय के पार्ट से पाई जाती हैं, मोस्टली इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद है यहाँ पे वुलर लेक है। उसके बाद सांबर लेक है जो यहाँ पे राजस्थान के पार्ट में है, सांबर लेक जो सॉल्टी वाटर लेक है। उसके बाद है यहाँ चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है, चिल्का लेक उड़ीसा जो साल्टी वाटर लेक है, चिल्का लेक। उसके बाद है यहाँ पे कोलूरू लेक है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, कोलूरू लेक। और यहाँ पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा लेक है जो अभी कर्नाटक में है। तो ये मेजर लेक्स इन इंडिया है जो आपकी क्या है, ये लेक्स हैं जो क्या है आपके क्या है जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है इन लेक्स के द्वारा। कुछ लेक्स जिसमें सॉल्टी हैं, कुछ आपकी क्या है फ्रेश वाटर लेक हैं। एंड लेक्स, टूरिस्ट लेक्स मीन्स द एरिया कवर्ड बाय लैंड and the student lake importance of lake tourist center and enhance natural beauty and habitat of aquatic life and helps to regulate the flow of water. and student lakes आपको पता है कि lakes क्या है, a large water body covered by land, जिसमें क्या है जो इसकी चारों जो साइड है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, जहाँ पे क्या होता है जिसके चारों साइड क्या होता है, पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्स बोलते हैं। और जो है लेक्स, लार्ज एक्सटेंट ऑफ लेक्स आर कॉल्ड सी सच एज कैस्पियन सी एंड डेड सी। एंड द लेक्स की इंपॉर्टेंस है, इट एनहांस नेचुरल ब्यूटी। जहाँ लेक्स होती हैं वहाँ जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए और नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करते हैं। हैबिटेट और एक्वेटिक लाइफ, और इसमें लेक्स में होते हैं बहुत सारे वहाँ पे जीव जंतु होते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो हैं जो लेक्स में रहते हैं उनके लिए क्या हैबिटेट यानी कि उनके लिए जगह प्रोवाइड की जाती है। लेक्स में वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और helps to regulate the flow of water. Lakes provide water and it regulate the flow of water in dry season and prevent flooding and supplies water during dry season. Used for developing hydropower and they moderate the climate of surrounding. एक तो यहाँ पे क्या है, कई बार क्या होती है बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से तो जो लेक्स उसमें क्या होता है बारिश का पानी वहाँ पे क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या है आसपास एरिया में फ्लड आने से क्या होता है बचाव किया जाता है। और क्या है लेक्स में जो पानी इकट्ठा होता है उसके द्वारा क्या है ड्राई सीजन में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है शॉर्टेज होती है वहाँ पे वाटर को प्यूरीफाई करके क्या है उनको यूज़ भी किया जाता है। और इसमें लेक्स के पानी के है उसकी वजह से उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है यानी कि पावर जनरेट की जाती है। और लेक्स की वजह से जो एरिया है जो वहाँ पे क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है। तो लेक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेक्स की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, पीसी कल्चर में काम आती है क्योंकि इसमें लेक्स होंगी तो वहाँ पे फिश भी होंगे जिसकी वजह से पीसी कल्चर को ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है, क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। Okay, and last students, some lakes are permanent and some lakes are seasonal and some lake are salty and some lake are fresh water lake. अब देखिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लेक्स हैं हमारी जो फ्रेश वाटर लेक हैं और कुछ लेक हमारी सॉल्टी हैं। अब जो आपकी हिमालय वाले जो पार्ट्स में आएगी यानी जम्मू कश्मीर अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय पे आएगी वो जो है सारी फ्रेश वाटर होती हैं, क्योंकि जो वहाँ पे हिमाद्री वाली पार्ट में बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वहाँ पानी हो जाता है, जिसकी वजह से जब है वहाँ पे जो लेक्स हैं उसमें क्या होता है फ्रेश वाटर आता रहता है। और फ्रेश वाटर आने की वजह से जो है वहाँ पे जो वुलर लेक है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द
वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो वूलर लेक है वो क्या है, सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर की। उसके बाद यहाँ पे डल लेक है, नैनीताल लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है, भीमताल है जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है सांबर लेक है। सांबर लेक है जो कि लेगून से बनी हुई है, लेगून से बनी हुई है, यानी कि जब सी का वाटर, जब सी का कुछ वाटर मेन सी से हट के कुछ अलग एरिया में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे जो लेक बनती है वो है सांबर लेक। वो है, उससे बनती हैं आपकी चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोल्लूर लेक एंड सांबर लेक है। इसको ये है इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, जो क्या है, जो रिवर्स हैं जो क्या है ओशन तक नहीं पहुंच पाती, वो केवल क्या होती हैं एक एरिया तक ही रहती हैं, और वो है सांबर लेक है जो सीजनल होती हैं, जिसमें केवल क्या है बारिश के दिनों में ही पानी रहता है, जैसे कि सांबर लेक। और सांबर लेक में जो लेक है वो जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, और यहाँ पे इस वाली लेक में नमक भी बनाया जाता है। तो सांबर लेक है। उसके बाद आपकी चिल्का लेक है जो भी सॉल्टी वाटर लेक है, जो कि आपके उड़ीसा में है। ओके, एंड यहाँ पे आपकी कुल्लूरू लेक है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये यहाँ पे जो आपकी ये है पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में, कोल्लूरू लेक आंध्र प्रदेश में है, और आपकी ये तुंगभद्रा लेक है ये कर्नाटक में है। तो दीज आर सम लेक्स ऑफ इंडिया। और कुछ डैम्स बने हुए हैं, अभी बताया था डैम्स हैं जहाँ पे क्या है पानी को इकट्ठा करके क्या बनाई जाती हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे भाखड़ा नंगल डैम है जो कि पंजाब में सतलुज रिवर्स के ऊपर जो भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है। और जो मानसरोवर लेक इधर है, जो मानसरोवर लेक चाहे तिब्बत के पास है। उसके बाद आपकी राणा प्रताप सागर डैम है जो राजस्थान में है, ये वाला जो पार्ट में वहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम भी है। और यहाँ पे हीराकुंड डैम है जो चिल्का लेक पे, जो यहाँ चिल्का लेक उड़ीसा में है, तो वैसे वहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी के ऊपर। नागार्जुन सागर डैम है। गोबिंद सागर है जो उत्तराखंड में बना हुआ है, गोबिंद सागर जो है वो उत्तराखंड में है, गोबिंद सागर लेक जो है उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर डैम है जो कि कृष्णा रिवर में बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बिल्कुल क्या है सेंटर में बनाया गया बॉर्डर पे, वो है नागार्जुन सागर डैम। तो स्टूडेंट, दीज आर सम लेक्स एंड रिवर्स एंड सम डैम्स ऑफ इंडिया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लेक्स आर ग्लेशियर लेक्स। आपको बताया था कि जो लेक्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ लेक्स आपकी क्या होती है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर लेक है वो कैसे बनते हैं ग्लेशियर से, क्योंकि जो अपर पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन है, हिमालय रेंजेस में 3 रेंज है। हिमाद्री जो पार्ट है वो मोस्टली क्या है स्नो बाउंड है, वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो होती हैं। और वहाँ जो लेक्स हैं वो हैं वूलर लेक, डल लेक, नैनीताल, भीमताल लेक्स हैं जो क्या है फ्रेश वाटर लेक हैं। और ऑक्सबो लेक आपको पता ही है कि जब ऑक्सबो लेक वो होती हैं जब रिवर अपर कोर्स से डाउन कोर्स में क्या करती हैं एंटर करती हैं, तो बहुत सारे कर्व बनाती हैं। और जब ऑक्सबो लेक जब क्या होती हैं, जब रिवर्स का कुछ पार्ट क्या होती हैं मेन स्ट्रीम से हट के जब एक अलग वाटर बॉडी बना लेता है, सेपरेट वाटर बॉडी बना लेता है, यू शेप्ड वैली होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक होते हैं। लेगून्स क्या होते हैं, लेगून्स सच एज सॉल्टी वाटर लेक। जब क्या होता है समुद्र का कुछ पानी, यानी सी का कुछ पानी उसके मेन स्ट्रीम से हटके अलग जगह क्या होता है इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे वहाँ पे कोराल रीफ होते हैं, यानी कि कोराल जो होते हैं छोटे जीव जंतु वो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है एक आइलैंड्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं बैरियर आइलैंड। और वो जब आइलैंड की वजह से सी का कुछ पार्ट बिल्कुल क्या आता अलग हो जाता है, तो उसको जो अलग स्ट्रीम हो जाती है, अलग पार्ट जो बन जाता है उसको बोलते हैं लेगून्स। और लेगून से जो लेक बनी है वो है चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोल्लूरू लेक एंड इनलैंड ड्रेनेज लेक। इसमें सम लेक्स आर मैन मेड लेक एंड सम लेक्स आर सीजनल लेक एंड सम लेक्स आर मैन मेड लेक। तो सांबर लेक है वो है नेचुरल है, वो सीजनल है, और इसमें क्या है पानी तभी आता है जब क्या है बारिश होती है, बारिश होने की वजह से पानी रहता है, और जो पानी है वो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है सॉल्टी होता है, जैसे कि सांबर लेक। ओके, और इनलैंड का मतलब है जिसकी जो ड्रेनेज है वो क्या है, जिसको क्या है सी में एंटर नहीं कर पाता, वो केवल उसी जगह पे क्या करता है मूव करता है, उसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, drainage lake. So student, these are the features of lakes and importance of river and importance of lake. And river also used to generate hydroelectricity. It is
sources of fresh water. Okay, and the government launched NRCP, National River Conservative Plan, in 1995, and its main aim to improve the quality of river water. And the Ganga Action Plan also merged with NRCP. So students, these are the features of lakes and rivers, and these are some features of Himalaya river and Peninsular river. And student, today your homework solution. First question, choose the right answer. Which one of the following describe the drainage pattern resembling the branches of a tree? Answer is dendritic. And question number second, in which of the following state is the Wular Lake located? Answer is Jammu Kashmir. And question number third, the river Narmada has its sources at? Answer is the Amarkantak. And question number fourth, which one of the following lake is a salt water lake? Sambhar Lake is a salt water lake. Which one of the following is the longest river of Peninsular river? And answer is Godavari. Answer is Godavari. And question number 6, which one of the following river flow throughout a rift valley? Tapi. And other is Narmada. And where do the river Indus and Ganga have their origin? Answer is the Indus river rises in Tibet near Mansarovar Lake, while the Ganga river rises in Gangotri Glacier in Uttarakhand. Question number 3, why does Brahmaputra in the Tibetan part have less silt despite a longer course? And the answer is the Brahmaputra river originates near Mansarovar in Tibet, where it is known as Sangpo. Second, in Tibet, the river carries small volume of water due to less rainfall and less silt, as it is a cold and dry area. But this river, when it enters India, passes through a region which receives heavy rainfall, so it carries a large volume of water and silt. And question number 4, name 2 head streams of the Ganga, which do they meet to form the Ganga? Alaknanda and Bhagirathi are the 2 head stream of Ganga. They both meet to form the Ganga at Devprayag. Question number 5, compare the east flowing and west flowing river. You know students, some rivers are east flowing and some rivers are west flowing. East flowing rivers, these rivers drain into Bay of Bengal, and these rivers form deltas. The tributaries of these rivers are large in size. An example, Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi are east flowing rivers, and they carry greater amount of sediments. And west flowing rivers, these rivers drain in the Arabian Sea, and these rivers form estuaries. Point 3, the tributaries of this river are small in size and they carry lesser amount of sediments. And 5th, Narmada and Tapi are west flowing rivers. Question number 6, why are the river important for the country economy? First, the river's plain provided ideal condition to the early civilization for the life of flourish to the earth, and they are also used for the donation of hydropower. River water is used for various purposes like domestic, industrial and agriculture, and it is used for navigation and transport. They help to moderate the climate, they help to develop tourism, and they provide fertility to the soil. And these are the feature of river. And question number 6, classify the lakes under 2 categories. First, natural lakes. Natural lakes are Wular Lake, Dal Lake, Nainital, Bhimtal, Chilka, Pulikat, Sambar, Bharapani and Loktak are natural lake. And human-made lakes such as Gobind Sagar in Uttarakhand, Hirakud in Odisha, Rana Pratap Sagar in Rajasthan, Naga Arjun Sagar in Andhra Pradesh, and Nizam Sagar also in Andhra Pradesh. So these are the natural lakes and human-made lake. And student, today your homework, revise chapter 3rd of geography and sole assignment, and you can get assignment on Edquark site. Okay student, thank you and keep learning.